Hello students, how are you? I hope you are doing good. Myself Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. I've been teaching for JEE Advanced aspirants and various other competitive exams aspirants for last 20 years. Here's my detailed introduction. So today I've come up with very important and interesting concept known as reduction formula in the chapter definite integrals. Here we'll talk about beta function, few amazing, integral functions like beta function, gamma function, volleys, and few other types also. So this study is very useful for the different competitive exams like ISI, CMI, as well as JEE. So coming up with the topic one by one, what actually is reduction formula? I'll introduce, and its various types: Wallis form, gamma function, beta function, and few more other types, and we'll do problems on it. Okay, so this is going to be a very useful session. All right. So what actually is reduction formula? The idea is to achieve the integral for some function. If you know the integral of fx, but to get the integral of higher powers of fx, this idea is used. The idea here is to reduce, suppose integral a to b fx whole raised power n dx is called in. If you replace n by n minus 1, then in minus 1 will be called like a to b integral a to b fx whole raised power n dx. लाइक I10 अगर निकालना है, इंटीग्रल a to b fx होल इज पर 10 होगा, 9 होगा तो आप पावर 9 लेंगे. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि in को, जहाँ पे n आपका होल नंबर है, in को विल ट्राई टू सम हाउ एंड वो जो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम in को रिड्यूस करते हैं in माइनस 1 पे और in माइनस 2 पे. सो रिड्यूसिंग in टू in माइनस 1 और टू in माइनस 2 और टू बोथ मे बी. ऑलराइट, यहाँ पे आई हैव रिटन एवरीथिंग यूजिंग some algebraic basic techniques or by integration by parts. Integration by parts यहाँ पे majorly use किया जाता है. Then using the formula thus obtained which is called rejection formula for this, जो relation है between in and in minus 1, इसको हम reduction formula बोलते हैं for this particular in, जो भी केस हमारा होगा उस टाइम पे. इसको हम रिपीटेडली यूज करेंगे in को in-1 में, और फिर in-1 को इन द सेम फॉर्मूला वी रिप्लेस n by n-1 टू गेट in-1 in terms of in-2, and then finally we get in terms of in-2, then again using it to in-3 convert करेंगे and so on. So eventually we'll get in terms of I0 or I1, so depending upon the case. And as we know कि I0 या I1 क्या है उसको हमें पता होगा, तो उसको हम फाइनली इवेंचुअली in को हम फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं, in का फाइनल वैल्यू. समटाइम्स in यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्टली fx होल इस पर ना हो, कुछ और फंक्शन ही मल्टीप्लाइड हो, a टू b fx होल इस पर n इंटू gx और a टू b f ऑफ nx dx और सम अदर टाइप. ऑलराइट, इसको हम समझेंगे किसी एक डिफरेंट एग्जाम्पल से. यहाँ पे मैंने पहला केस लिया है, that in is equal to integral 0 to 1 minus x cube whole raised power n dx. सो 1 minus x cube का तो इंटीग्रेशन पता है, पावर 2 पे भी मान लो आप निकालोगे, बट हायर पावर, सपोज पावर 100 है, 50 है, तो हाउ डू वी फाइंड द फाइनल वैल्यू? शो दैट in is 3n upon 3n plus 1 times in minus 1 for all n belong to natural numbers, and hence find this series. How this series can be found using this idea देखते हैं. सो in को पहले तो हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है. सो in को लिखा 0 to 1, लेकिन 1 एज सेकेंड फंक्शन, इसमें हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करने वाले हैं. ऑलराइट, 1 का इंटीग्रेशन x, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट एज इट इज 0 to 1 माइनस इंटीग्रल साइन 0 to 1 integral of 1 that is x, डिफरेंशिएशन इसका करने वाले n into 1 minus x cube
whole raised power n minus 1 into minus 3x square as per chain rule dx. All right. So from here we get when x is 1 it is 0, when x is 0 it is 0, so it is finally ये 0 आ रहा है within this suitable limits. और यहाँ पे we can convert it plus हो जाएगा 3n, all right, integral 0 to 1 x cube 1 minus x cube whole raised power n minus 1 dx. So again इसको लिखा जा सकता है 0 to 1 x cube को again we can form in terms of 1 minus x cube. 1 minus x cube is x cube and 1 minus x cube whole raised power n minus 1 dx. So मैं आराम से इसको बता रहा हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट साइन है. ऑलराइट, so 3n times. So 3n times when you distribute these two terms, तो जो फर्स्ट है that is nothing but the same structure, similar structure with n minus 1. So that will be called in minus 1 minus the same in. From here you'll get 3n plus 1 times in is equal to, collecting in the left, 3n times in minus 1. That is, this is what we had to prove, 3n upon 3n plus 1 into in minus 1. So this is the रिडक्शन फॉर्म. इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब इसको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं. देखिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आई विल टेक दिस सीरीज ऑल्सो, हेंस फाइंड वाला. सी, सो वी ऑब्टेन दिस. अब इसको आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो. लाइक मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन में एक सीरीज़ है जिसमें हम जनरल टर्म लिखना चाहें अगर, तो इट इज़ सिग्मा ऑफ minus 1 raised power r 10 cr upon 3r plus 1 r from 0 to 10. All right. So this is nothing but 1 upon 3r plus 1 को we can write minus 1 raised to the power r 10 cr into integral 0 to 1 x raised power 3r. All right. What is integral 0 to 1 x raised power 3r? It is 1 upon 3r plus 1. And then writing it as, so we can take integral sign out, 0 to 1 r equal to 0 to 10 cr minus 3 minus x raised power 3 whole raised power r. Finally ऐसे लिखा जा सकता है. All right. Now इसको लिख सकते हैं 0 to 1, this is nothing but the opening of sorry, 1 minus x cube whole raised power 10 dx. So it is I10 from our assumption, or I10 को we can reduce as 3 into 10 upon 3 into 10 plus 1 I9. Now n को 9 रखें तो 3 into 10 अपॉन 31 इंटू ये आएगा 3 into 9 अपॉन 3 into 9 प्लस 1 इंटू I8. सो इसको आप ऐसे करके रिड्यूस करते जाइए तो फाइनली I10 है ये, और I10 की वैल्यू हो जाएगी 3 raised to the power n, राइट, इंटू 10 फैक्टोरियल, व्हाट यू से, अपॉन 31 देन 28, आपको 3 रिड्यूस करना है, इंटू अप टू ये 1 जाएगा 4 1, एंड इवेंचुअली फाइनली ये आई नॉट में कन्वर्ट होगा. सो क्योंकि आप 3 into 1 लिख रहे हो, 9 है तो 8 है, तो यहाँ पे जब 1 आने वाला है, आप समझ रहे, तो आई नॉट आएगा. बट आई नॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो. बट व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट की बात करें तो इज़ वेरी सिंपल, 0 to 1 1 minus x cube whole raised power 0 dx, that is 0 to 1 1 dx, that is 1. So finally जो हमारा आंसर होना चाहिए I10, that is
3 raised to the power 10, n is basically 10 here. 3 raised to the power 10 into 10 factorial divided by 1 into 4 into 7 up to 31. This is the final answer to this problem. Alright, bachcho, I hope you understood this. Coming to the next, I have taken trigonometric power of sin x और power of cos x पे भी same value आने वाली वैसे यहाँ पे. So in let in with this n equal to whole number, n is whole number 0 1 2 3. So that in is this, hence obtain this these two problems. Okay, इनकी values हम निकालने की कोशिश करेंगे. So सबसे पहले in की बात करें तो यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ही सेकेंड फंक्शन लेते हैं. अलजेब्राइक या लॉगरिथमिक के केस में 1 को लेते हैं सेकेंड फंक्शन. सो यहाँ पे मैं साइन रेज पावर n माइनस 1, लेट्स डिड्यूस दिस रिजेक्शन फॉर्मूला. इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं बार बार. सो दिस इज 0 टू, ऑलराइट, अप्लाइंग बाई पार्ट. सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं साइन रेज पावर n माइनस 1x and integral of sin x is minus of cos x 0 to 1 minus sin 0 to 1. So n minus 1 differentiation part n minus 2 हो जाएगा into cos x आएगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेट करने पे फिर से cos x आएगा. सो और माइनस माइनस प्लस होना है तो यहाँ पे cos स्क्वायर मैं लिख देता हूँ. आर यू गेटिंग इट? So the very first part में अगर देखें तो 1 पे, सॉरी इट वाज पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2 पे cos is 0, 0 पे sin is 0, so it becomes 0 and this is n minus 1 integral sin 0 to pi by 2 sin raised power n minus 2x into cos square को we can write 1 minus sin square. And when you separate दोनों को अलग अलग कर लें n minus 1 टाइम्स आएगा I n minus 2 the first part, second part again we get I n. So यहाँ से क्लियर है बच्चों, when you collect I n now तो n minus 1 plus 1 already was there times I n in the left, in the right n minus 1 times I n minus 2. So यहाँ से I n की वैल्यू आ रही है n minus 1 upon n into I n minus 2. So we obtain here I n in terms of I n minus 2. Alright. So like ये हो गया रिजेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑल n greater than equal to 2. n जैसे 2 रखने पे I नॉट पे जा रहा है. यहाँ हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि I n को अगर रिड्यूस करते जाएं, ऑलराइट, so you'll get the formula for 0 to pi by 2 sin raised power nx dx as, जब आप this basically in और n minus 1 डाल देंगे पहले by n करेंगे और that is in minus 2. now in minus 2 के लिए again will replace n by n minus 2, तो ऊपर आएगा n minus 2 minus 1 that is n minus 3. 2 का ड्रॉप है, नीचे आएगा n minus 2, फिर n minus in minus 4 आएगा तो in minus 4 के लिए फिर से replacing n by n minus 4 you'll get n minus 4 minus 1 that is n minus 5 upon n minus 4 और ऐसे चलता जाएगा. ये एंड में will reach to, यहाँ पे ऊपर जो आने वाला है वो 1 और 2 आने वाला है और नीचे में अकॉर्डिंगली जो है आपका, जैसे ऊपर अगर 1 आया तो नीचे 2 लिखेंगे, ऊपर 2 तो नीचे 3 लिखेंगे, तो वो डिपेंड करेगा एंड में क्या आने वाला है लास्ट में. बट एक चीज़ है कि ये अगर इफ़ एन इज़ इवन तो ऊपर ऑड आएगा, यानी 1/2 आएगा. तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि 1 और 2 आएगा, कोई एक आएगा, नॉट इन ऑर्डर कि ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, ऐसा नहीं है. ऊपर 1 है तो नीचे 2 आना है और ऊपर 2 है तो नीचे 3 आएगा. ठीक है, तो इसी तरह से वट एवर इज न्यूमरेटर +1 आएगा नीचे, तो 2 और 3
लिख सकते हैं आप, 3 तक जाएगा या 1 तक भी जा सकता है। तो मतलब 3 तक गया तो इंटू 1 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे एक फैक्टर आएगा I0 और I1। सो दैट इज़, इसको मैं Q दे देता हूँ नाम, वेयर Q को लिख सकते हैं ऑब्वियसली। इफ़ n इज़ even तो हम I0 पे रुकेंगे और I0 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। I0 क्या है? I0 when n is 0 so it is pi by 2 एंड I1 अगर रुकता है when n is odd, तो ये क्योंकि 2 का गैप है ना, 2 का डिफरेंस पे जा रहा है, तो I1 इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2, वो माइनस कॉस एक्स करके वो उसकी वैल्यू 1 आएगी। सो इनिशियल वैल्यूज हमें मालूम है। तो व्हेन सो दिस इज पाई बाई 2 इफ n इज इवन, इज 1 इफ n इज ऑड। तो हमने यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला बनाया है इस इंटीग्रल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। लाइक आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है। सो आई चेक दीज 2 प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट पेज। सो I7 बेसिकली, दिस इज I7। अच्छा, इफ यू अप्लाई द किंग रूल ना, लाइक इफ यू रिप्लेस x बाई सम ऑफ लिमिट्स दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये सेम एज 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेज पावर nx dx भी लिखा जा सकता है इसको। सो ये I7 है और ये I10 है। I7 और I10 की वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला नीचे इस तरह के इंटीग्रल के लिए ऐसे आपको n-1 से 2 ड्रॉप करके, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। सो गेटिंग I7, आई मीन यहाँ पे I7 की बात करें, आई मीन जो हमसे पूछा गया है 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज पावर 7x dx, इसको हम लिखेंगे 6 बाई 7, फिर 2 का ड्रॉप यानी 4 बाई 5, 2 का ड्रॉप यानी 2 बाई 3 इंटू I0 आएगा, 3 इंटू 1 कर सकते हो। I0 आएगा तो I0 हम लिखेंगे अच्छा ये 7 था तो ये ऑड था तो I1 आएगा, और I1 की वैल्यू कितनी है? तो 6 इंटू 4 इंटू 2 नीचे लिखना है, 7 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ पे एज n इज ऑड सो विल गेट I1 एज 1, यहाँ 1 लिखना है, Q की वैल्यू 1 है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसका फाइनल आंसर जो बन रहा है इसको जैसे हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 को कैंसिल करेंगे और 16 अपॉन 35, ऑलराइट, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। कमिंग टू I10, जैसे पूछा गया था यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेज पावर 10x dx, इसकी वैल्यू अगर यूजुअल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से करें तो इट्स क्वाइट लेंदी। सो इस डिरेक्शन फॉर्मूला से ये फटाफट आ जाएगा। देखिए 10 पे आपको 9 लिखना है, एक कम करके, फिर 7 दो रिड्यूस करके, फिर 5, फिर 3, 9 7 5 3 1, ठीक है। और यहाँ पे 10, ठीक है, n हो गया, फिर 2 ड्रॉप करके 8, आप समझो 6 4 2, और यहाँ पे आएगा इफ इट इज़ लाइक Q आएगा, तो Q यहाँ पे क्या है, मतलब n इवन है तो इवन के लिए पाई बाई 2 लगाना। तो फाइनली इस तरह से वी कैन इजीली फाइंड। सो इसकी वैल्यू थोड़ा हम रिड्यूस करें, जैसे कि 3 कैंसिल कर सकते हैं, 3 यहाँ पे जैसे 2 आ गया और 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी 2 आ गया। तो नीचे में पावर्स ऑफ 2 अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 2 यहाँ पे भी 2 है। सो ये आएगा 2 रेज़ पावर 9 दैट इज़ 512, and in the numerator 63 pi upon 512. So this is the final answer to this question. Alright, so in this way we get all these. Coming to Wallis formula, देखिए Wallis formula deals with if you get sine and cos simultaneously in the integral. It's a very amazing formula and very useful, very important exam में आता है ये काफ़ी। So यहाँ पे Wallis formula इसी बेस पे जनरेट किया गया, जैसे हमने नीचे यहाँ पे important नोट में लिखा था नीचे ना, साइन रेज पावर n के लिए फॉर्मूला, उस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। सो द आइडिया इज कि इसको हम IMN बोल देंगे, इसको ना बेसिकली IMN बोला जाता है, और IMN को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करके m-2, n में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक को दो मतलब जैसे आप cos x
इसको साइन रेज पावर m माइनस वन एक्स इंटू कॉस रेज पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दोगे, और कॉस रेज पावर एन एक्स साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन लेके जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं तो ये आई एम एन जो है आई एम एन माइनस टू कॉमा एन में कन्वर्ट होगा। तो m रिड्यूस हो गया m माइनस टू पे, n सेम है। इसको रिपीटेडली यूज़ करके हम फिर सामने आगे कुछ फैक्टर्स भी आते जाएंगे, है ना, रेशियोज। तो आई नॉट कॉमा एन पे आई एम एन कन्वर्ट हो जाएगा आई नॉट एन पे, फिर नॉट एन यानी आई एन फॉर द अर्लियर फॉर्म, इसके लिए आई एन है, उसको हम फिर से रिपीटेडली यूज़ करेंगे और फिर आई एम एन को आई 0 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो फाइनली 0 या 0 1 पे कन्वर्ट होगा ये। तो इस तरह से फाइनल फॉर्म एक बनता चला जाता है। वो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ और विल यूज़ इट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा फिर से विल मेक ब्रैकेट फॉर फर्स्ट फैक्टर साइन रेज पावर एम एक्स, एम माइनस वन लिखना ऊपर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि 10 था तो 9 7 5 ऐसे किया था, एक 10 से एक कम 9 और उसके बाद दो रिड्यूस किया, नीचे सेम रखा गया। तो ऐसे m के लिए m माइनस वन m माइनस थ्री ऐसे चलता है, दो को ड्रॉप करना है। यहाँ पे 1 और 2 पे इवेंचुअली आप रुकोगे, जैसा होगा नंबर उस हिसाब से। और यहाँ पे फिर दूसरा ब्रैकेट पावर n के लिए n माइनस वन n माइनस थ्री डॉट डॉट 1 और 2 पे हम यहाँ रुकने वाले हैं। और डिनोमिनेटर में हमें m प्लस n दोनों लिखना है, यहाँ पे m प्लस n लिखना है। देन दो रिड्यूस करेंगे, m प्लस n माइनस टू करेंगे और फिर ये इवेंचुअली 1 और 2 पे ही रुकेगा डिपेंडिंग अपॉन द पैरिटी ऑफ m प्लस n। m प्लस n अगर इवन है तो आप 2 पे रुकोगे, और है तो 1 पे, और 1 या 3 पे। इनटू यहाँ पे अगेन एक फैक्टर आएगा विच इज़ से q बोल दिया, जहाँ पे q को हम मेंशन करने वाले हैं। q होगा, मैं बता दूँ, यहाँ पे q होगा पाई बाई 2 इफ बोथ mn belongs to even integers, ठीक है, is 1 in all other cases otherwise। मतलब हमने 1 लेना है q को whenever m or n is odd, at least one of them is odd, mn both odd, m odd n even, और m even n odd, in all these three cases at least one is odd, तो हमें 1 लेना है, और दोनों even है तो पाई बाई 2 लेना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, और दिस इज कॉल्ड वॉलिस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो mn यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ इस पे, अब इस क्वेश्चन को फटाफट हम निकाल सकते हैं। देखिए, तो इसमें 6 की जगह आप ऊपर 5 लिख दो। पहले इस ब्रैकेट के लिए, फर्स्ट के लिए, साइन के लिए लिखेंगे 5, देन 2 का ड्रॉप, देन 1, डन। फिर नेक्स्ट के लिए 5 तो 4, देन 2 का ड्रॉप, 2, यहाँ रुक जाना है, 1 और 2 पे रुकना होता है हमेशा। और यहाँ पे 6 + 5 11 लिखना है, फिर 2 का ड्रॉप 9, फिर 2 का ड्रॉप 7, फिर 2 का ड्रॉप 5, फिर 2 का ड्रॉप 3, इंटू 1 कर सकते हैं, इंटू q। नाउ एज one is even, other is odd, both are not even, so here we have to write 1. So in this way we'll get the value of it. The value when we simplify it, so 5 3 यहाँ जैसे कैंसिल हो रहा होता हुआ दिख रहा है, ऑलराइट, और 4 2 तो ये आ जाएगा 8, and in denominator you'll get 9 into 7 is 63, 63 into 11 630 plus 63, so that is 693. So 8 upon 693 is the final answer to this problem. All right, very easy, we easily got the answer. So within a minute आराम से आप इन प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। तो इसके अब थोड़े वेराइटीज मैंने चेंज किए। दिस इरेशनल फंक्शन, इन दिस केसेस ऑल्सो वी कैन, सपोज यहाँ 1 लिखा है, 1 में शायद x को साइन स्क्वायर लेके या x साइन x लेके आप सोच रहे होगे 1 ना भी हो, सपोज कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 2 हो 5 हो तो भी हम कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस तरह का 2a लिया हुआ है, 2ax करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, व्हाट विल गेट, I एज, सो व्हेन x इज 0 और थीटा 0 से पाई बाई 2 लिया गया, व्हेन x इज 0
So theta is 0. When x is 1, theta is pi by 2. So changing the limit also ना. So sin raised power 4 theta, x को लिखा sin theta, और 1 minus sin square is cos square theta whole raised power 3 by 2, and then dx would be cos theta d theta. Alright, so ये बन गया finally 0 to pi by 2 है ना, और ये हो जाएगा cos sin raised power 4 theta into cos raised power 4 theta d theta. Alright, सो यहाँ पे वॉलीज फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों. वॉलीज सेज कि यहाँ पे हमने 3 लिखना है, 3 इंटू 1 लिखना है. यहाँ अगेन 3 इंटू 1 ही करेंगे, और यहाँ 4 + 4 8 से शुरू 8 6 4 2, और यहाँ एज बोथ आर इवन सो वी हैव टू राइट पाई बाई 2. ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये I44 हो गया एक तरह से ना, I44 मतलब उस तरह से जो हमारा रिडक्शन था, वॉलीज का फॉर्म लगाना था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 3 तो कट जाएगा, और 3 पाई आने वाला है न्यूमरेटर में, 3 पाई अपॉन, ऑलराइट, सो 2 क्यूब 2 raised power 5 2 raised power 6 2 raised power 7 2 raised power 8, दैट इज 256. सो यहाँ पे 2 raised power 8 दैट इज 256. so 3 पाई अपॉन 256 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो ये इसका फाइनल आंसर बन गया. इस तरह से वी could easily find this integral. Now taking this question, इसमें क्या करना चाहिए कि हमें साइन कॉस का फंक्शन बन जाए. डिनोमिनेटर को सर्च करते हैं. सो इट इज़ लाइक 2a माइनस एक्स, अगर x कॉमन ले लो, x ऐसे लिख दिया. अब x हम साइन या कॉस सोच सकते हैं, बट 2a माइनस एक्स का क्या करें? तो 2a माइनस एक्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि x को ले लें 2a टाइम्स cos 2 थीटा, लेकिन फिर cos 2 थीटा यहाँ प्रॉब्लम करेगा, तो 2a टाइम्स cos स्क्वायर ले सकते हैं, या साइन स्क्वायर भी ले सकते हैं, चल जाएगा. 2a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ पे मैं मतलब पुट करने वाला हूँ x एज 2a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा. तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? तो इंटीग्रल बिकम्स when x is 0 theta is 0, when x is 2a theta is pi by 2. X cube means 2a whole cube, that is 8a cube, sin raised power 6 theta. dx को लिए we will write 2a times 2 sin theta cos theta d theta. In denominator you'll get under root of 4a square. Alright, 4a square will be common, sin square theta common, into 1 minus sin square, that is cos square. Alright, so from here we get 2 into 2 4 32 by 32 a raised power 4. In denominator we have 2a, in numerator we have, okay, integral sin 0 to pi by 2, sin theta cos theta will get cancelled, and sin raised power 6 theta, I think, yeah, and this is 16a cube, and Wallis here. So I mean Wallis for single function. तो यहाँ पे आएगा 5, then 3, then 1. In denominator you'll get 6, then 4, then 2, and then as any power is even, it is pi by 2. So finally इसका आंसर क्या बनने वाला है आप देखिए. 3 से कैंसिल करेंगे जैसे यहाँ पे ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 का कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर से. दिस इज 5 पाई a क्यूब बाई 2, 5 पाई a क्यूब बाई 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. एरिया के प्रॉब्लम में भी काम आ सकता है. एरिया निकालो कर्व के अंदर, तो इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और मतलब वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड ईजिली यूजिंग दीज आइडियाज़. सो नेक्स्ट हम चलते हैं गामा फंक्शन पे. वॉलीज हमने देखा. गामा फंक्शन कहता है कि ये एक स्पेशली डिज़ाइन इंटीग्रल फंक्शन है. फॉर ऐसे काफ़ी आ जाते हैं, तो इसको अलग से डिफाइन किया गया. फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स द कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर मतलब जिसमें लिमिट्स दोनों फाइनाइट ना हो, तो उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं. बट
लिमिट्स अगर फाइनाइट नहीं, फाइनाइट लिमिट पे तो हमेशा वैल्यू फाइनाइट आएगी बाउंडेड फंक्शन में. अगर इनफाइनाइट लिमिट पे बाउंडेड फंक्शन, इनफाइनाइट लिमिट पे अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, फाइनली इंटीग्रेशन या एरिया फाइनाइट आ जाए, तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं. जब भी कन्वर्ज मतलब कन्वर्स कर गया, अगर इन्फिनिटी फाइनाइट नहीं आता तो मतलब इन्फिनिटी अगर आता है प्लस और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू इंटीग्रल की, तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं. दिस इज कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन एज गामा एन, द बिग गामा साइन गामा एन, 0 to infinity e raised power minus x into x raised power n minus 1 लिया गया, इज नोन एज गामा फंक्शन. इसके लिए रिएक्शन फॉर्मूला तैयार करते हैं. तो देखिए गामा एन जो है में हम इसको लेंगे सेकेंड फंक्शन, ई रेज आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो. दिस इज फर्स्ट. सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर माइनस इज माइनस ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स, माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, ऑलराइट, इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ लगाना है 0 to infinity माइनस. तो माइनस से प्लस हो जाएगा फिर, और n माइनस 1 व्हेन विल टेक डिफरेंशिएशन, ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेज पावर n माइनस 2, 0 to infinity dx. सो व्हेन यू पुट द लिमिट इन्फिनिटी, तो ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा व्हेन x इज इन्फिनिटी ना, ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी 0, बट हेयर वी गेट इन्फिनिटी, तो 0 into infinity फॉर्म है. बट व्हेन यू फाइंड द लिमिट ना, यहाँ पे लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स रेज पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज पावर एक्स, एंड LH रूल, लॉपिटल रूल जब लगाओगे रिपीटेडली, तो एट वन प्लेस विल गेट एन माइनस 1 फैक्टोरियल. रिपीटेडली मतलब रेशियो फॉर्म में लॉपिटल लगाते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर. सो एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ई रेज पावर एक्स आएगा, जहाँ पे वो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो वो 0 आने वाला. और 0 पे तो ऑब्वियसली इट इज़ 0, व्हेन एक्स इज 0, लोअर लिमिट पे इट इज़ 0, प्लस, तो फाइनली ये 0 ले रहे हैं, और यहाँ पे n माइनस 1, एंड दिस इज नथिंग बट आई, अच्छा ये n माइनस 1, अच्छा n माइनस 1 रिड्यूस टू, देखिए यहाँ पे n माइनस 1 था और यहाँ पे अभी n माइनस 2 आ गया है, इसको n माइनस 1 बोलेंगे. सो फाइनली इसके लिए जो गामा फंक्शन के लिए जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है, गामा n इज n माइनस 1 टाइम्स गामा, दिस इज गामा, गामा फंक्शन, इसका गामा नाम दिया गया, गामा n minus 1. So this is the rejection formula for this function. Very easily obtained. अब इसको हम repeatedly यूज़ करेंगे. अच्छा, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर आगे यूज़ किया जाए तो गामा n जो आएगा n minus 1, गामा n minus 1, again replacing n by n minus 1 you'll get n minus 2 गामा n minus 2, और फिर इस तरह से ये पूरा एंड 1 तक जाने वाला है. और फिर जब 1 पे जाएगा तो गामा 1 आएगा, और गामा 1 मतलब n को आपने 1 डालना है यहाँ पे. विल से कि गामा 1, विल सी गामा 1 क्या है, गामा 1 है n को 1 यानी 0 to infinity ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स 0 to infinity, इसकी वैल्यू क्या आनी है, माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 पे ये 1, तो ये मतलब ठीक है. सो फाइनली 1 आ रहा है, गामा 1 इज़ 1. सो फाइनली गामा 1 1 है, इसको यूज़ करते हुए वी कैन राइट कि इसकी वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल बनने वाली है. तो देखिए जो भी यहाँ पे पावर है n माइनस 1, उसी का फैक्टोरियल इनमें आंसर है गामा. इसकी फाइनल वैल्यू इज़ n माइनस 1 फैक्टोरियल, इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. अच्छा, नीचे एक नोट लिखा है 0 to, देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन इवैल्यूएट 0 to infinity ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेज पावर 5, एक्स माइनस 1 डी एक्स. ठीक है, इसमें हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे -1 -2, तो यहाँ पे वैसे इसको अगर सेपरेट कर दिया तो ये आ रहा है -0 to infinity ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेज पावर 5 डी एक्स. दिस इज नथिंग बट गामा, इसको 5 बोलें या 6 बोलें, 6 बोलना पड़ेगा क्योंकि n माइनस 1 था फॉर्मूले में, और ये गामा 5 है, गामा 6 है, और ये सॉरी मुझको यहाँ पे 6 लिखना चाहिए था, और यहाँ 5 6, ये गामा 7 है, और ये गामा 6 है. आप देखो यहाँ पे क्या है, गामा के टर्म में अगर हम बोल रहे हैं तो गामा एन में पावर इज n माइनस 1 पे गामा n बोला गया, तो यहाँ 6 है मतलब इट इज़ गामा 7, 5 है मतलब गामा 6. नाउ गामा 7 की वैल्यू वैसे देखी जाए तो क्या आएगी, गामा 7 की वैल्यू, हाँ गामा 7 की वैल्यू देखिए आप लास्ट पेज पे, गामा n वॉज n माइनस 1 फैक्टोरियल,
तो गामा 7 6 फैक्टोरियल ही होगा, एंड में वही आएगा जो यहाँ पे पावर था, है ना। पावर देखिए गामा का जो फंक्शन n-1 लिखा गया है गामा n के डेफिनेशन में, तो इनमें आंसर भी n-1 ही आ रहा है। ऑलराइट, सो n-1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस गामा 6 इज 5 फैक्टोरियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल? इट इज 720 and 5 factorial is 120. So final answer to this question is 600. 600 is a final answer. Alright बच्चों, and what about this I mean यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, इसको देखें, 0 to infinity e raised power minus x x raised power k हो, मतलब आप याद रखने के लिए गामा, इसको अलग ही गामा k प्लस 1 बोलेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है अगर इंटीग्रल को सिर्फ देखें तो जो भी पावर है x का वही उतना ही फैक्टोरियल आंसर लिखना है, तो यहाँ k फैक्टोरियल आपने आंसर लिख देना है सीधा सीधा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 आया था, 5 आया था, तो आंसर देखो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिख दिया और आंसर आ रहा है। ऑलराइट, टेकिंग फ्यू मोर एग्जाम्पल, लाइक 0 to 1 ln 1/x होल रेज़ पावर 4 dx लिखा गया, तो 1/x इस माइनस ln x होल रेज़ पावर 4, तो ln x होल रेज़ पावर 4 ही होगा, लेकिन अगर पावर 5 होता तो इसका सिग्निफिकेंस आता कि चलो माइनस बाहर आएगा। मैंने एक जनरल नीचे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, इसको भी हम देख सकते हैं, जनरल एन पे इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ln 1/x को t ले लें या ln x को t ले लें, तो आई एम टेकिंग ln 1/x इज इक्वल टू t, सो यहाँ से 1/x विल बिकम e रेज़ पावर t, सो x बिकम्स e रेज़ पावर माइनस t। ऑलराइट, सो यहाँ से फिर dx को विल रिप्लेस बाई माइनस e रेज़ पावर माइनस t dt। This integral becomes when x is 0, this is a relation, when x is 0, t is minus infinity, alright, sorry, t is infinity, and when x is 1, t is 0, and minus sign ahead, e raised power minus t dt, and here t raised power 4, you get this. सो दिस इज नथिंग बट, एंड जिसको लिखा जा सकता है लिमिट इंटरचेंज करके माइनस कंज्यूम हो जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस टी रेज़ पावर 4 डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट गामा 5, लेकिन गामा 5 चलो आप नहीं भी लिखो, सीधा इसका आंसर मतलब आप सीधा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 24 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस वाज दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, 24 4 फैक्टोरियल मतलब सीधा सीधा। और मैं इसकी बात करूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप ln x होल रेज़ पावर n को ऑब्जर्व करें बच्चों, तो इसमें हम अगर ln x को t ले लें, ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना मतलब e रेज़ पावर माइनस टी ले लो, x इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस टी यहाँ पे भी अगर ले लें, तो देखिए क्या सीन बनेगा, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू लाइक इन अबव क्वेश्चन, t 0 पे माइनस इन्फिनिटी नहीं, व्हेन x इज 0 t इज इन्फिनिटी, इट इज फॉर माइनस ऑलरेडी इज देयर ना, सो व्हेन x इज 1 इट इज 0, एंड ये बन जाएगा e रेज़ पावर माइनस t इज देयर ना, ओके। ln x को हमने, सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ln x इज माइनस टी, ऑलराइट, ln x इज माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टी होल रेज़ पावर n, एंड देन dx के लिए विल राइट माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर अहेड, e रेज़ पावर माइनस टी डी टी, एंड व्हेन यू टेक माइनस 1 आउट, तो यहाँ पे एंड लिमिट्स विल बी इंटरचेंज एंड माइनस कंज्यूम हो जाएगा, तो माइनस 1 रेज़ पावर n and remaining is nothing, so 0 to infinity e raised power minus t raised power n dt, so this is nothing but minus 1 raised to the power n into n factorial is the final answer to this form. So इसका final answer है minus 1 raised to the power n into n factorial, ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस 1 रेज़ पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, सीधा आंसर, तो इस तरह से देख सकते हो आप। सो बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट बीटा फंक्शन पे आते हैं, तो हमने कुछ एग्जांपल लिए, गामा फंक्शन, वॉलीज फार्मूला, है ना, और ln x होल रेज़ पावर n का भी देखा आपने, 0 to 1 में फाइनल आंसर है माइनस 1 रेज़ पावर n इंटू n फैक्टोरियल, फाइनली डायरेक्टली।
बीटा फंक्शन डील्स विद दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ऐसे बड़े कॉमन एग्जाम्पल मिलेंगे आपको. सो 0 to 1 एक्स रेज पर अगेन m-1 पावर m-1 n-1 लिया गया है, सो दैट कि mn को आप 1 भी लोगे तो ये पावर 0 जनरेट होगा, होल नंबर्स पावर्स आएंगे. सो बीटा mn बोलते हैं इसको. ऑलराइट, इन रिजल्ट पावर देख के हम आंसर लिखते हैं, बीटा में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बीटा फंक्शन इसको बोलते हैं. और इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ. पहला रिजल्ट है कि बीटा mn जो है वो सेम एज आएगा बीटा nm. ऑलराइट, गेटिंग इट? क्यों आएगा, आई विल एक्सप्लेन इट. ये वैसे बहुत रिप्लेसिंग x बाई 1 माइनस एक्स से सीधा दिख जाता है. सेकेंड रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ आपको कि बीटा mn जो है वो अगर आप x को कुछ सब्स्टिट्यूट करें टू सुटेबली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 times 0 to पाई बाई 2 साइन रेज पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा में. ऑलराइट, तो ये इस तरह से आएगा. और इसका एक और, सो दिस, ये जो अभी मैंने लिखा है इसको हम कह सकते हैं अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन. ठीक है. और जो थर्ड है इसकी वैल्यू पे कमेंट कर रहा है, फाइनल वैल्यू जो बीटा mn है उसको हम प्रूव कर सकते हैं गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n. सो दीज आर द अमेजिंग रिजल्ट्स कम फ्रॉम हेयर दिस फंक्शन. तो बीटा गामा में एक रिलेशन भी आपको एक तरह से दिख रहा है यहाँ पे. सो कैसे ये आता है, क्यों आता है, वन बाई वन विल टेक दिस कि बीटा nm क्यों है. बीटा mn फंक्शन 0 to 1 x रेज पावर m माइनस 1 माइनस एक्स होल रेज पावर n माइनस 1 dx है. तो देखिए फॉर 1 बाई 1, जैसे बीटा, पहले तो मैं बीटा mn लिख दूँ, था क्या, बीटा mn डिफाइन एज 0 to 1 x रेज पावर m 1 माइनस एक्स रेज पावर m माइनस 1 n माइनस 1. ऑलराइट, dx. So using the king property, replacing x by sum of limits minus x very easily, you can see कि बीटा mn जो है वो आ जाएगा 0 to 1 x, replacing x by 1 minus x raised power m minus 1 and 1 minus x whole raised power n minus 1 dx. and the second factor को पहले लिख देता हूँ, x raised power n minus 1 1 minus x raised power m minus 1 dx. this is nothing but beta. सो एज इफ कि m की जगह n दिख रहा है, n की जगह m दिख रहा है, nm. तो ये आ गया. ठीक है, तो ये फर्स्ट जो हमारा के रिजल्ट था. सेकेंड रिजल्ट देखें क्या था, मैं 2 जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक. तो हम क्या करेंगे, पुट x एज साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाए. तो 1 माइनस साइन थीटा से कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता, तो साइन स्क्वायर रखा गया है. यहाँ से बीटा mn अगर चेक करें बच्चों, तो क्या आएगा, लिमिट चेंज करोगे थीटा के अकॉर्डिंग, 0 पाई बाई 2 साइन रेज पावर 2 थीटा होल रेज पावर m माइनस 1 साइन 2m माइनस 2 थीटा विल बिकम. यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो कॉस रेज पावर 2n माइनस 2 थीटा एंड dx पे यूल गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. सो फाइनली ये क्या बन रहा, ये बन रहा 2 आउट 0 to पाई बाई 2 साइन रेज पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बीटा mn फंक्शन. थर्ड पार्ट व्हाट वी हैड टू प्रूव, देखते हैं एक बार. बीटा गामा में एक रिलेशन सा दिख रहा है. सो बीटा mn जो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मैं वॉलीज यूज करने वाला हूँ. वॉलीज के थ्रू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा साइन कॉस का जो पावर था 2 तो था ही, 2 तो है ही, और यहाँ पे आने वाला है 1 रिड्यूस करके 2m माइनस 2. देखिए इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, 2m माइनस 4 देन गोइंग टू 1 और 2 पे. जैसे ये ऑड है तो फाइनली ये इवन यानी 2 पे ही रुकेगा. तो यहाँ पे 2 पे रोकता हूँ इसको, और सेकेंड ब्रैकेट फॉर
कॉस, तो ये पावर ऑड है तो यहाँ इवन लिखेंगे 2n माइनस 2, सारे इवन है, और 2n माइनस 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये भी 2 पे रुक गया। एंड डिनोमिनेटर में यू विल सी दोनों का सम 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1, दैट इज 2m प्लस 2n माइनस 2, देन 2m प्लस 2n माइनस 4, और आप समझ रहे हैं। सो यहाँ पे इनटू आ रहा है, ये भी इवन है सारे, ये भी 2 ही है, और क्योंकि बोथ पावर्स आर ऑड सो इट इज़ 1। क्यू की वैल्यू जो क्यू का डिस्कशन किया था हमने, दैट इज़ 1। सो व्हेन यू आई मीन सिंप्लीफाई इट, यू विल सी कि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में 2s हम बाहर कर सकते हैं, m माइनस 1 का फैक्टोरियल है 2 इंटू हाउ मेनी 2s आर देयर, m माइनस 1 पावर पे m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज पावर n minus 1 into n minus 1 factorial. In denominator, what we are getting is m plus n minus 1 factorial into m plus n minus 1 factorial into, now how many 2s are there? So m plus n minus 2. 2 raised power m plus n. So इसको मैं थोड़ा राइट में लिख देता हूँ. So when you take 2's common ना, you'll get 2 raised power m plus n minus 1. So अब न्यूमरेटर से 2 raised power m plus n minus 2 plus 1 n minus 1 ही कट रहा है सारा. And finally we are getting m minus 1 factorial into n minus 1 factorial divided by, so factorial के हेल्प से ना ये चीज़ इनडायरेक्टली गामा में कन्वर्ट की जा सकती है. सो इट इज़ गामा n वॉज n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो इट इज़ गामा n, और फिर यहाँ पे सॉरी ये जो चीज़ निकल के आ रही है अपॉन गामा m प्लस n. तो एक बीटा गामा में एक इनडायरेक्ट रिलेशन, थर्ड रिजल्ट जो यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो ये रिलेशन आ रहा है. बट ठीक है, तो रिलेशन इज मतलब क्वेश्चन में व्हाट इज़ यूजफुल इज कि हम डायरेक्टली जैसे यहाँ पे नोट लिखा गया इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं. तो आप अगर बीटा के फॉर्म में ना भी कन्वर्ट करो तो फाइनल आंसर जो हमेशा आप देख रहे हो कि जो इसकी वैल्यू आ रही है, फाइनल आंसर देखा जाए बच्चों तो ये है, ये ऑलराइट. बीटा एम एन की जो फाइनल वैल्यू है वो ये है, ऑलराइट. सो ये है इंपॉर्टेंट. तो पावर m माइनस 1 पे न्यूमरेटर में m माइनस 1 ही दिख रहा है, ऑलराइट. और पावर n माइनस 1 जो सेकेंड फैक्टर है उसका सेम फैक्टोरियल आ रहा है. नीचे उनके पावर्स के सम माइनस 1 नहीं है, एक्चुअली प्लस 1 है. m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1, दैट बिकम m प्लस n माइनस 1. ठीक है ना. तो हमें करना क्या, जो पावर है यहाँ पे m माइनस 1 उतना ही फैक्टोरियल जो पावर है वही, यानी p, इसको आप ध्यान दीजिए. तो p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल अपॉन p प्लस q प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा आ रहा है. तो दिस इज द फाइनल आंसर, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल अपॉन p प्लस q प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, जैसे ऊपर देखो m प्लस m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, दैट बिकॉज m प्लस n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो m प्लस n माइनस 1 आएगा, जो कि यहाँ पे आपको रिजल्ट में दिख रहा है. ठीक है बच्चों, तो ये फाइनल आंसर है इस तरह के स्ट्रक्चर का. तो गामा में देखा कि जो पावर है उतना ही फैक्टोरियल का आंसर है. इसमें जो तो वॉलीज ये सारी चीज़ें जैसे हम फ्रिक्वेंटली वी कैन टेक दिस क्वेश्चन. तो ये दिस इज बेसिकली, अगर आप बीटा में लिखना चाहोगे तो ये तो बीटा 21 31 लिखा जाएगा, लेकिन ठीक है बीटा के टर्म में. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर जो ऊपर फैक्टोरियल जो पावर है वही फैक्टोरियल लिखना है, और p प्लस क्यू प्लस 1 दैट इज 20 प्लस 30 प्लस 1, तो 20 प्लस 30 प्लस 1 लिखना है, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा. तो ये फाइनल आंसर है 20 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 51 फैक्टोरियल. ऑलराइट बच्चों, नीचे वाला क्वेश्चन लें, इसमें थोड़ा सा एक सीरीज बनाया गया है. इसको फिर मतलब यू कैन ट्राई इट, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम कॉफिशिएंट्स देखें तो 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, एज इफ कि 1 4 6 4 1 ऐसे
पास्कल्स ट्रायंगल्स में भी आपने इनिशियल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का आइडिया है, तो आप इसको देख सकते हो कि इस सीरीज़ को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बाइनोमियल सीरीज़ की तरह देख सकते हैं। अगर आपने एक्स रेज पावर 96 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 को मैं 4c नॉट लिख देता हूँ क्योंकि अगला जो है वो 4c 1 है। अच्छा, एक्स रेज पावर 4 भी लिखना पड़ेगा ना, ओके, एक्स रेज पावर 4 माइनस 4c1 एक्स क्यूब प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर माइनस 4c3, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन लेके प्लस 4c4 लिखा जा सकता है dx, एंड दिस बिकम्स 0 to 1 x raised power 96 into, this is nothing but the opening of 1 minus x whole raised power, या x minus 1 whole raised power 4 कर सकते हैं आप, तो ये बन रहा है dx, what do you say? तो ये जो है 1 minus या x minus 1 whole raised power 4 ऐसे कह सकते हैं। तो ये बेसिकली बीटा के टर्म में बीटा फंक्शन है, और इसमें आंसर सीधा जो पावर है उसी का फैक्टोरियल लेना है, पावर है उसका फैक्टोरियल लेना है, और नीचे में +1 कर देना है ऐड करके। तो 96 + 4 + 1 दैट इज 100 + 1 दैट इज 101 फैक्टोरियल। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन फाइनली। तो इस तरह के क्वेश्चन फटाफट हम निकाल सकते हैं बीटा फंक्शन की हेल्प से, वेरी यूजफुल। एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं बीटा के आइडिया से, बीटा फंक्शन के हेल्प से। तो 0 to ½ तो पहले तो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल सा लग रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, 1/4 - x स्क्वायर है, होल रेज़ पावर 4 है, तो हाफ पावर भी है ना, 0 to 1 नहीं है, 0 to ½ है। या तो हम पावर 0 to 1 करने के लिए x को x/2 ले लेते हैं, मतलब x को 2t ले लें, या फिर एक बार हम सम ऑफ लिमिट्स -x ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से ट्राई किया जा सकता है। x की जगह पे सम ऑफ लिमिट ½ -x रखा तो 1/4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। होल ओके, होल स्क्वायर होल रेज़ पावर 4। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 0 to ½ 1/4 कैंसिल, एंड यहाँ पे आएगा x - x स्क्वायर होल रेज़ पावर 4 dx। तो ये इनर फंक्शन तो बीटा टाइप का दिख रहा है हमें, लाइक 0 to ½ x रेज़ पावर 4 1 - x रेज़ पावर 4 dx। अच्छा, वैसे वी कैन डायरेक्टली कॉल इट ½ of 0 to 1, बिकॉज हमें बीटा फंक्शन में लिमिट्स वेर 0 and 1 ना, और ये क्यों लिखा ½ of 0 to 1 डायरेक्टली? एक्चुअली एक होता है ना किंग प्रॉपर्टी, या जो मास्टर प्रॉपर्टी है डिफरेंट इंटीग्रल्स की, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि 0 to 2a fx dx को लिखते हैं 2 times 0 to a fx dx, अगर f of 2a - x fx के इक्वल है तो उसको रिवर्स करके देख सकते हो आप। जैसे मैं, आप चाहो तो इसको इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं, मतलब 0 to 1 x रेज़ पावर 4 1 - x होल रेज़ पावर 4 dx, इस तरह से उल्टा आप देखिए अगर, तो ये वैसे आएगा 0 to ½ 0 to 2a को 0 to a लिखते हैं, 0 to ½ एंड इनर फंक्शन में जब fx और f of 2a - x करेंगे, बिकॉज हेयर द फंक्शन जो भी है, इफ यू रिप्लेस x/1 - x यू विल गेट द सेम थिंग, पावर सेम है 4 4। तो इसको आप देख सकते हो कि ये इसका डबल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है उसका डबल है, मतलब लेफ्ट हैंड में जो इंटीग्रल है दैट इज ½ ऑफ द इंटीग्रल इन द राइट हैंड साइड। दीज टू आर इक्वल, यू कैन इजीली चेक इट। सो एंड इट इज, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? तो यहाँ पे 4 हमने लिखा था, 4 फैक्ट बीटा फंक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, देन अगेन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 plus 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल इज द आंसर। सो लेट्स कैलकुलेट इट, देखते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 8 7 6 5 तक ले जा सकते हैं। अच्छा, वैसे 9 फैक्टोरियल, एक चीज़ और कर सकते हो आप यहाँ पे वैसे चाहो तो, कि NCR की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो 1/9 इंटू 8c4, ऑलराइट, ये भी चलेगा ना। अच्छा, 8c4 की वैल्यू कितनी होती है? 8c4 वैसे 70 होता है, लेकिन आप चाहो तो इसको फिर उससे भी कर सकते हो, 8/4 इंटू 7c3,
और 7C3 तो चलो 35 इतना आइडिया होना चाहिए, या 7/3 कर लीजिएगा ज़्यादा तो ठीक है, मतलब वो ओपन पूरा ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है 1/2 इंटू 9 इंटू ये इसकी वैल्यू होती है 70। तो फाइनली कितना आ गया ये आ रहा है 14 मतलब 18 इंटू 7 इज़ 126, सो 1260, सो 1 अपॉन 1260, 1 अपॉन 1260 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, सो ये इस तरह से हमने कन्वर्ट किया इस क्वेश्चन में। मोर टाइप्स में अगर बात करूँ, सो वी कवर्ड वॉलीज, कवर्ड गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, एवरीथिंग, यू गॉट इट। सो एक बार जस्ट रिवाइज कीजिए, एक बार देखिए। या सो वी स्टार्टेड विद दिस, एक पहले इंट्रोडक्शन दिया मैंने, फिर यहाँ पे हमने इस फंक्शन को इसके थ्रू, फिर मैंने वॉलीज का जनरल फॉर्म बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है साइन कॉस, इस पर कुछ क्वेश्चन देखे फटाफट, और ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने लिखा था गामा फंक्शन e रेज़ पावर माइनस एक एक्स पॉइंट माइनस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है, और इसकी वैल्यू वही आती है जो पावर है एक्स का n-1 फैक्टोरियल। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे हम, और नीचे हमने k फैक्टोरियल लिखा है सीधा। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बीटा फंक्शन में, इस फंक्शन को बीटा फंक्शन बोलते हैं, और तो वॉलीज गामा एंड बीटा, और इसका आंसर m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1। यहाँ पी क्यू के टर्म में p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल p प्लस q प्लस 1 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। इसका ये प्रूफ बताया मैंने, सारे एक्सप्लेनेशंस। एंड यहाँ पे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ किया गया है, तो इनको आप देखिए, और ये लास्ट यहाँ पे किया था। मोर टाइप्स में बात करूँ तो देयर आर फ्यू फॉर्म जिसमें कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं बट डायरेक्टली आ जाता है, कुछ एरो सब्ट्रैक्ट करके कई बार, तो वो भी आप देखो 2-3 कुछ एडिशनल फॉर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक IN इज 0 to π/4 tan रेज़ पावर nx dx, tan का पावर n है, तो मेनली हायर पावर्स पे डील करता है ना। और JN एक यहाँ पे IN-1 प्लस IN-1, डायरेक्टली आप JN पे जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं या तो IN का जो है सीधा रिजेक्शन फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, या JN जैसे सजेस्ट किया गया, JN लिखता हूँ मैं। JN इज IN-1 प्लस IN-1, क्या बनेगा देखते हैं। 0 टू, तो IN-1 और IN+1 में एक रिलेशन बढ़िया डेवलप होने वाला डायरेक्टली जस्ट ऐड करने पे। सो tan रेज़ पावर n-1 लिख दूंगा मैं इसको, और इसको tan, क्योंकि लिमिट सेम है, n+1 लिख दूंगा, और यहाँ पे dx कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 to π/4, इफ़ यू टेक tan रेज़ पावर n-1 कॉमन, यू गेट 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर, एंड tan x को t लेके सब्स्टिट्यूट करके, तो इसका फाइनल जो इंटीग्रल आने वाला है tan रेज़ पावर nx अपॉन n, ये आएगा n-1 प्लस 1 इज n ना, एंड 0 to π/4। सो व्हेन यू पुट π/4 इट इज 1/n आ गया। सो jn बेसिकली 1/n आ गया, 1/n आ गया, ऑलराइट। सो jn 1/n आ गया, तो डेफिनेटली जो सीरीज़ है आपका, ये जो सीरीज़ है ये आपका J1 1 हो जाएगा, J2 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सो ये एक HP है, HP सीरीज़ है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ये सिंपल ये क्वेश्चन था इसमें, बट हमने देखा क्या कि जो IN+1 है दैट इज़ नथिंग बट 1/n माइनस, मतलब आप में यहाँ पे जैसे कर सकते हैं कि IN जो है वो 1/, तो n+1 के लिए मैं n लिख रहा था, 1/n लिख रहा था, तो IN के लिए n-1 लिख देंगे, माइनस IN-2। तो इस तरह का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे कुछ जनरेट हो रहा है, बट ये सिंपली ऐड सब करने से, सीधा ऐड करने से आ रहा है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन आते हैं इस पर। IN इज 0 to π sin nx अपॉन sin x dx। अब fnx पावर n नहीं है, बट n x में मतलब इनपुट x में मल्टीप्लाइड है। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स इंक्लूडिंग 0, मतलब होल नंबर्स बेसिकली लिखा गया। प्रूफ करना है IN इज इक्वल टू I n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, और फिर सेकेंड पार्ट में IN की वैल्यू पूछी गई है।
ठीक है, सो आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू कैसे आएगा, मतलब ये सीधा डायरेक्टली इक्वल आ रहा है टू टू को ड्रॉप पे। जैसे आई 10 पूछा जाए तो आई 8 हो जाएगा, आई 8 आई 6 हो जाएगा, तो आई 10 इवेंचुअली आई नॉट के इक्वल आएगा, कुछ इस तरह की बात, और आई 9 आई 1 के इक्वल आएगा। तो क्या करते हैं, सीधा आई जो ट्रिगोनोमेट्री सी एन डी फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेशली साइन कॉस में, आई एन माइनस टू करो सीधा, देखो इसको हम जीरो प्रूफ करेंगे। सो जीरो टू पाई है, और यहाँ पे क्या है कि दो के गैप में ना ऑलराइट बच्चों, नीचे साइन एक्स कॉमन डी एक्स, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी क्या बनने वाला है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो एन प्लस एन माइनस टू दैट इज टू एन माइनस टू बाई टू करेंगे, एन माइनस वन आएगा, ऑलराइट आप चेक कीजिए, इंटू साइन एक्स आएगा जो कि डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लमेटिक टर्म था वो कट गया, और यहाँ से सीधा इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, दैट इज टू, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, ऑलराइट। सो ये जीरो टू पाई जब रखेंगे, पाई पे साइन ऑफ इंटीग्रल मतलब पाई जीरो, और तो यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, जीरो पे भी जीरो ही आ रहा है, मतलब ये जीरो आ गया। फाइनली हमें निकल के आया कि आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू, ये हमने प्रूफ किया, ऑलराइट। सो दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ ऑब्वियसली आई एन को मैं इसको रिपीटेडली यूज करके सीधा लिख सकता हूं, आई नॉट इफ एन इज इवन, जैसे आई 10 आई 8 आई 6 इवेंचुअली आई नॉट पे आएगा, और अगर एन ऑड है, इफ एन इज ऑड देन ये आई वन में कन्वर्ट होगा। नाउ आई नॉट क्या है, पुट एन इक्वल टू जीरो, व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज एन इक्वल टू जीरो, जीरो होल नंबर्स पे डिफाइन। आई वन देखें तो एन की जगह वन आ जाएगा, यानी पाई आ जाएगा इंटीग्रल, तो फाइनली आंसर जो है वो ज़ीरो है इफ़ एन इज़ इवन। हालांकि एन इवन जीरो किंग प्रॉपर्टी से भी डायरेक्टली मतलब सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करके भी प्रूव हो जाता है, बट ऑड पे देखिए, ऑड पे ये पाई आ रहा है इफ़ एन इज़ ऑड। अगर दोनों को क्लब करके लिखें तो ये जो सेकेंड फॉर्म बताया गया ना वो उसी का है, जब एन इवन लोगे तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, ऑड लोगे तो ये पाई हो जाएगा। इसको वी कैन एक्सप्रेस इट इन दिस वे collectively directly this for all n belongs to natural including 0, सारे कवर्ड है। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज सेकेंड पार्ट, सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वॉज सेकेंड पार्ट, ऑलराइट। सो ये भी आप अगर ध्यान रखें, याद रखें तो वेरी यूजफुल है। साइन रेज पावर 9x बाई साइन एक्स आ गया 0 टू पाई, सीधा आंसर है पाई, तो ये बहुत कॉमनली आता है। ये क्वेश्चन की तरह लिए हमने, तो यहाँ पे दो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ए एंड बी, कुछ मोर टाइप्स को लेके, बहुत स्टैंडर्ड कॉमन टाइप्स हैं, और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिया है, इसमें साइन स्क्वायर एन एक्स है, नीचे साइन एक्स सेम है, तो इसमें भी इसको अगर हम लेट्स कॉल इट आई एन, तो आई एन को जैसे आप इसको आई एन मान लिया है, तो ओके अगेन मैं आई एन है, सो आई एन माइनस वन कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑलरेडी है ना, मतलब ऐसा फील दे रहा है डबल एंगल का, तो माइनस वन करने से टू का डिफरेंस आएगा, अब बाई टू करके ना वो वन आएगा, मतलब साइन एक्स कटेगा। देखते हैं 0 टू पाई बाई टू, सो साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस वन एक्स, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई टू साइन ए माइनस बी दैट इज साइन एक्स, साइन ए प्लस बी दैट इज 2n माइनस वन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कट गया डी एक्स, एंड इंटीग्रल इज कॉस ऑफ 2n माइनस वन एक्स अपॉन 2n माइनस वन 0 टू पाई बाई टू. So what will you get here from here? Right. So pi by 2 पे it is 0, 0 पे it is 1, तो माइनस ऑफ साइन का इंटीग्रल, अच्छा माइनस कॉस लिखना था हमें, हाँ माइनस कॉस,
सो पाई बाई 2 से 0 पे 1, तो ये फाइनली आ जाएगा 1/2n-1. ऑलराइट, सो इसको सो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया in-1 इज इक्वल टू 1/2n-1. When you use it repeatedly, again and replacing n by n-1, you'll get this. तो यहाँ आएगा 1/2n-3 and so on. जब हम n को 1 लेते हैं और तो यहाँ i नॉट आएगा, तो यहाँ पे i नॉट आ गया और ये n को 1 लेने पे ये 1/1 आ रहा है. सो व्हेन यू ऐड ऑल दीज एंड आई नॉट की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये सारे ही घटने वाले हैं. ऑलराइट, तो फाइनली व्हेन यू ऐड ऑल दीज यू विल गेट in एज द सीरीज 1/2n-1. ऑलराइट, प्लस 1/2n-3 अप टू 1. सो फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ से कि in जो है वो आ रहा है 1 + 1/3 + 1/5, सारे ऑड आ रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर 2n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल तक ये डिफाइन है. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. यहाँ पे दोनों में पावर्स हैं, sin स्क्वायर nx, sin स्क्वायर x. इसको देखिए, अगर मैंने इसको नाम दिया in, देन व्हाट यू से in -1 कर दें, स्क्वायर है तो -1 कर रहे हैं, sin स्क्वायर nx माइनस sin स्क्वायर n-1x अगेन एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x dx. सो यहाँ पे हम फिर से sin a + b इंटू sin a - b से sin x कट जाएगा और ऊपर आएगा sin 2n-1x अपॉन sin x, एक sin x कट गया. तो ये देखा जाए तो फिर से ये वाला फॉर्म बन गया जो वेरी फर्स्ट फॉर्म ने थ्योरी में यहाँ पे कवर किया था, 0 to pi sin nx by sin x n odd. देखो ये वाला फर्स्ट in is sin, when n is odd the answer was pi. तो इसको आप डायरेक्टली चाहो तो सीधा सीधा पाई लिख सकते हो यूजिंग दैट. वेरी नाइस. सो in - in-1 इज पाई. एक एज इफ की डिफरेंस टू कंटिन्यूटी टर्म्स का कांस्टेंट है, ये एपी फॉर्म करेगा. i1 i2 i3 विल फॉर्म एन एपी, कॉमन डिफरेंस पाई पे. सो सीधा हम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसी को रिपीटेडली in -1 ये आ गया, तो फिर से यूज़ करें वही एपी वाला ही आइडिया, वैसे सीधा लगा सकते हो आप. i1 - i नॉट तो आपका फिर से 0 है. व्हेन यू ऐड ऑल दीज, एडिंग वी गेट एंड i नॉट इज 0, दिस इज 0. सो in सीधा आ जा रहा है n पाई. ये इसका आंसर n पाई बन गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n यूजिंग इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो. 0 पे भी ये वर्क कर रहे हैं. सो ये 0 पे i नॉट 0 था. तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास. वी like covered so many problems here and the various types of theory. Beta, gamma, beta volleys सबसे पहले important, then gamma function e raised to power -x वाला, beta 1 x raised to power n 1 - x whole raised to power mn वाला जो था. ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक लिए जिसमें कि हमने डायरेक्टली कुछ tan raised to power nx में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके हमें ईजिली रिडक्शन फॉर्मूला बन जा रहा है. और ये इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. So coming to now, so I hope you understood all these things. Theory very important. Theory today I covered. हाँ, अब बच्चों एकलव्य के बारे में क्या बताना आपको, आई थिंक अब तक पता लग ही गया होगा, नहीं तो आप गूगल कीजिए. सो बेस्ट प्रोग्राम है मतलब जेई के लिए ना. तो आप इसको जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के बच्चे हैं उनके फीडबैक्स ले सकते हैं आप. सो कुछ कहना ही नहीं है. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पे कुछ यूजफुल लिंक्स हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस दिस ईयर, इनफैक्ट यू आर गोइंग टू गिव जेई दिस ईयर 2022 और नेक्स्ट ईयर 2023 और नेक्स्ट ईयर 2024, तो आपको ये सारे, या फ्यूचर में आपके प्लान्स हैं, आप किस क्लास में है उस पर डिपेंड करेगा. यहाँ पे आपके लिए सारे डिटेल्स इस लिंक के साथ और QR कोड है, इस पर आप जाके सारे पता कर सकते हो. वी अपडेट
all the things here, सारे इन्फॉर्मेशन you'll get. 22 में देने वाले हैं, तो इसके लिए स्पेशली यहाँ पे आपको ऐसे दो लास्ट जो मैंने बताया उसमें सारे इन्फॉर्मेशन हैं फॉर डिफरेंट ईयर्स. 2022 एस्पिरेंट हो आप तो स्पेसिफिकली इसके लिए इससे भी आप जा सकते हो. सो टेलीग्राम लिंक है हमारा ये, इस पर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, updated information, all the updates. If you are JEE aspirant 2023 going to give JEE next year, you'll get all the information, required information here. Going to give in JEE in 2024, you'll get all the informations here. And QR code है यहाँ पे. वी इम्पैक्ट चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी हमने सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं. इस पर हमने प्रीवियस ईयर JEE के प्रॉब्लम्स को भी के वीडियो सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, 1 by 1 एक एक करके, एक एक क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया डिटेल, बहुत प्यार से हमने समझाया है एक एक बात, कंसेप्ट्स को. एक एक क्वेश्चन के डिफरेंट अप्रोचेस बताए गए हैं, शॉर्टर अप्रोच जो भी पॉसिबल है, और वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर. तो यहाँ पे जाइए. और KVPY के एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस हैं. KVPY ऑल्दो एग्ज़ाम अभी जो है कैंसिल माना जा रहा है, बट उसके जो क्वेश्चन हैं वो बड़े अच्छे थे, तो उनको भी आप एक अपने क्वेश्चन बैंक की तरह, सेट की तरह ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो. उनके डिस्कशंस हमने 3-4 लास्ट KVPY के ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे. ऑलराइट बच्चों, नाउ द टाइम फॉर टीजर क्वेश्चन. आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फॉर दिस अगस्त मंथ. फॉर mn बिलोंग्स टू नेचुरल यूनियन 0, यानी कि नेचुरल होल नंबर कवर किया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m+1 होल रेज पर n+1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इनटू एंड इंटीग्रल इज 0 to 1 x रेज पर m ln x होल रेज पर n dx. तो ये जो इंटीग्रल है इसको IMN कह के आप इसको रिडक्शन फॉर्मूला बनाइए, तैयार कीजिए, उसको रिपीटली यूज़ करके. मतलब आप जो भी आइडिया यहाँ शेयर किया इन दिस टुडेज सेशन, जो आज हमने लेक्चर यहाँ पे देखा स्टडी में, तो उसके हेल्प से इसकी वैल्यू, फाइनल एक वैल्यू निकल के कुछ बढ़िया सा आएगा. तो इसको ट्राई करना. ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन. इफ़ यू सॉल्व दिस करेक्टली तो आप इसको भेजिए हमारे पास इस ईमेल एड्रेस पे. ईमेल आईडी यहाँ पे eklavyaSupport@vedantu.com. एंड यहाँ सब्जेक्ट नेम लिखना, मतलब आपको यहाँ पे जैसे मैथ्स लिखना है, लिख के हमें सेंड कीजिए. एंड इफ़ वी फाइंड योर सोल्यूशन इज करेक्ट, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ एकलव्य प्रोग्राम डायरेक्टली. ठीक है, विल लीड टू यू. ऑलराइट बच्चों, सो दैट वाज फॉर टुडेज सेशन. ऑलराइट, so I hope you enjoyed this session, and very amazing, important session for all the various exams. Various things were covered today. Okay, so that's it for today's session. All right, bye bye, take care, see you in the next session.